One thing. Hello guys, welcome back to my channel Science Made Easy by Mahima, and today I am going to start a new chapter, that is human health and diseases from class 12th. Okay, so now we are going to start. Okay, the chapter name is human health and diseases. ठीक है, चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हेल्थ, डिजीजेस, immunity and drugs and alcohol abuse. Actually, the chapter content I am going to discuss is common diseases in human. First of all, second is immunity. Third is various type of diseases like AIDS and cancer. We will discuss about these also. And next one is drugs and alcohol abuse. Okay. So firstly, we have to understand what is health. Health does not simply mean the absence of diseases or physical fitness only. Okay. हेल्थ का सिंपली मतलब ये नहीं है कि आप एब्सेंस है आप में डिजीजेस का तो वो आप हेल्दी हो, ऐसा नहीं बोल सकते. हेल्थ इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग. हेल्थ कैन बी अफेक्टेड बाय मेनी फैक्टर्स ऑल्सो. सो फर्स्टली हेल्थ इज health does not simply mean absence of diseases or physical fitness only. Okay, actually health है क्या? It is defined as a state of complete mental, social and physical well-being. Okay, सो हेल्थ डायरेक्टली हम नहीं बोल सकते कि कोई पर्सन हेल्दी है तो उसका सिर्फ यही मतलब है कि वो एब्सेंस ऑफ डिजीजेस है. दिस इज नॉट द डेफिनेशन एक्सेप्टेड बाय WHO ओनली. ओके, हेल्थ की जो डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ कंप्लीट मेंटल, सोशल एंड फिजिकल वेल-बीइंग. ओके, health can be affected by genetic many factors like genetic disorder. सबसे पहले हम बोलेंगे कि genetic disorders हैं, like deficiencies होती हैं. लाइक जब चाइल्ड बॉर्न करता है तो बहुत सारी जेनेटिक डिफिशियंसीज होती हैं. ठीक है, डिफेक्ट्स होते हैं जो वो इनहेरिट करता है फ्रॉम देयर पेरेंट्स. ओके, डिफिशियंसीज with which a child is born or defects which the child inherits from parents. Okay, so these are the genetic disorder and it also affect our health. ठीक है, नेक्स्ट वन है इन्फेक्शंस. ठीक है, हेल्थ कैन ऑल्सो बी अफेक्टेड बाय इन्फेक्शंस. थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज very important factor in our daily life, that is lifestyle including food and water. Like balanced diet, we must have balanced diet. We take rest and exercises, yoga, we give to our bodies or habits that we have or lack. Okay, actually here we have understood, I think we all have understood about health. So I'm going to describe it over here. Health can be affected by following factors. Okay, first one is genetic disorders. Next one is infections. And the third one is lifestyle. Hygiene also play a very important role in affecting our health. Okay, if there is unhygienic habits, then we'll obviously get diseases. Okay, so now we have to understand what is diseases. Actually, when the functioning of one or more organ or system of body is adversely affected
or characterized by various signs and symptoms, we say that we are not healthy. Okay, कब, जो फंक्शनिंग ऑफ आर वन और मोर ऑर्गन्स, जब वन और मोर ऑर्गन की जो फंक्शनिंग होती है और द सिस्टम्स ऑफ बॉडी इज एडवर्सली अफेक्टेड, characterized by various symptoms and signs, okay, we say that we are not healthy, that is we have a disease. अगर हम healthy नहीं है तो we must have a disease. Okay, we should have diseases. We have diseases can be broadly classified into two categories. ठीक है, फर्स्ट होती है congenital and second word is acquired diseases. So diseases के बारे में I'm going to discuss over here. Diseases, that are two types. First is first in congenital diseases, and the next one is acquired diseases. कॉन्जेनाइटल डिजीज जो होती हैं, जो बर्थ के दौरान ही होती हैं. दीज डिजीजेस अकर्स एट बर्थ एंड मे रिजल्ट फ्रॉम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स और अफेक्ट डिफेक्ट्स इन डेवलपमेंट में भी अफेक्ट डाल सकती हैं. और डिसऑर्डर ये जो होते हैं ना, ये बर्थ से होता है. बट जो सेकेंड होता है एक्वायर्ड डिजीजेज. ओके, एक्वायर्ड डिजीजेज में क्या होता है कि हम आफ्टर बर्थ वो चीज़ें डेवलप करते हैं. वो डिजीजेज जो होती हैं वो आफ्टर बर्थ हम डेवलप करते हैं. एंड दे कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इंटू टू मेन कैटेगरीज. ये जो है ये है फ्रॉम बर्थ. ओके, ये है एनवायरनमेंट से जो एक्वायर की जाती है, लाइक आफ्टर बर्थ. लाइक हम अगर हाइजीनिक तरीके से नहीं रह रहे हैं, अनहाइजीनिक वे में हम लाइफस्टाइल है, हमारी बैलेंस डाइट नहीं है, योगा नहीं है, एंड ऑल दीज फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्वायर्ड डिजीजेस. एंड दे ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट. Again, acquired diseases are of two types: infectious diseases and non-infectious diseases. They are also known as communicable diseases and non-communicable diseases. Okay, so firstly we have to understand what is infectious diseases. What are infectious diseases? Sorry, easily transmitted from one person to another person. They are diseases by any means of any mode of spread, we can say. किसी भी तरह से ये easily transmitted होंगे from one person to another person. Okay, और जो नॉन इन्फेक्शियस होते हैं ये स्प्रेड नहीं करते, नॉट स्प्रेड टू वन एंड अनदर पर्सन. सेकेंड क्या है, इन्फेक्शियस डिजीजेज आर वेरी कॉमन एंड सम ऑफ देम आर फैटल टू, लाइक एड्स. नॉर्मल तो इन्फेक्शियस डिजीजेस कॉमन होती हैं, बहुत सारी ऐसी कॉमन डिजीजेस होती हैं, बट सम आर फैटल, जो कि जान पे आपके ले सकती हैं, लाइक एड्स. ठीक है, इसमें क्या है, ये नॉन इन्फेक्शियस जो होते हैं वो स्प्रेड नहीं करते, नॉट स्प्रेड टू वन पर्सन टू अनदर पर्सन. एंड दे biggest example is cancer, which are the disease which is taking the life of many patients, as you all have understood about it. So now the next concept is pathogens. Okay, pathogens, the wide range of organism could cause diseases in men. Such disease causing organisms are called pathogens. आपने बहुत बार सुना होगा कि पैथोजेंस वर्ड्स आपने बहुत बार सुना होगा, बट उसके बारे में क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो होता है ना, वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुड कॉज डिजीजेज इन मैन. सच डिजीज कॉजिंग ऑर्गेन, एक्चुअली जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हीं को हम पैथोजेंस कहते हैं. जैसे एग्जाम्पल हम इसके बारे में ज़रूर सुना होगा, लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोन्स, हेलमेंट्स, एक्सेट्रा. ओके, so now we are going to discuss about the common diseases in humans. There are varieties of diseases, there are various type of diseases, but they are classified into various categories like bacterial diseases, viral diseases, okay, fungal diseases. बहुत सारी ऐसी categories में इनको divide किया गया for easily understandings. Okay, firstly है bacterial diseases. फर्स्ट है टाइफॉइड. इसको हम एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं, बट टाइफाइड से हम ज़्यादातर हर एक इंसान जानता है कि टाइफाइड क्या होता है. ठीक है, इसका जो पैथोजन होता है ना, साल्मोनेला टाइफी होती है. ठीक है, और बहुत इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट
ये है कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया के हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं या फिर बैक्टीरिया के बारे में जब हम जानते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। तो ये वाला जो है साल्मोनेला टाइफी विच इज द पैथोजन ऑफ टाइफॉइड, पैथोजन हमने ऊपर पढ़ा, सच डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हीं को पैथोजेंस बोलते हैं। तो जो टाइफाइड है वो बैक्टीरियल डिजीजेज है, डिजीज के अंदर आता है, तो उसका जो पैथोजन है वो साल्मोनेला टाइफी है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है कि किस तरह से ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, इनका ट्रांसमिशन मोड क्या है। ये एक्चुअली क्या होता है कि जनरली एंटर थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। ये ज़्यादातर ना स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू जाते हैं, और कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, जो भी मतलब अनहाइजीनिक फूड एंड वाटर होगा जिसपे कंटेमिनेशन किया गया होगा, वो फूड एंड वाटर के थ्रू ये मतलब जनरली एंटर करते हैं एंड माइग्रेट टू अदर ऑर्गेनिज्म थ्रू ब्लड। ब्लड के थ्रू ये अदर ऑर्गेनिज्म में भी अदर ऑर्गन्स में भी ये माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है। इनके मेन सिम्टम्स जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिम्टम्स क्या हैं इनके? सस्टेन्ड हाई फीवर, जो फीवर है ना वो 39 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस होगा। सस्टेन्ड हाई फीवर होगा, वीकनेस बहुत ज़्यादा होगी बॉडी में, स्टमक पेन भी होगा, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी होगी, हेडेक भी होगा, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम इज लॉस ऑफ एपिटाइट। बहुत ज़्यादा मतलब ये आई थिंक लगभग लोगों में ये ज़रूर होता है, ये देखा गया है कि लॉस ऑफ एपेटाइट, आपको भूख ही नहीं लगेगी, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर ये बहुत ज़्यादा सिवियर है तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाते हैं, जो इंटेस्टाइन्स होते हैं उसमें बहुत सारे परफोरेशन हो जाते हैं, बहुत सारे पोर्स हो जाते हैं, एंड डेथ में अकर्स इन सिवियर केसेस। बहुत सारे केसेस, सिवियर केसेस जिसको टाइफाइड होता है ना, उसमें इंटेस्टाइन में परफोरेशन के थ्रू डेथ भी हो सकती है। अच्छा, इसका टेस्ट क्या होगा? कौन सा ऐसा तरीका है जिसकी वजह से हम बता सकते हैं कि भाई आपको टाइफाइड है? तो इसके लिए जो हमारी लेबोरेटरी में टेस्ट होता है ना, वो उसको बोलते हैं वाइडल टेस्ट, ठीक है। क्या है ये? बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइडल टेस्ट, WIDALTEST, ओके। यहाँ पे शायद क्लियर ना हो बट ये वाइडल टेस्ट है, ठीक। हेयर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट टाइफाइड, ठीक है। पर आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जो टाइफाइड है वो एक्चुअली में सबसे पहले आया कहाँ से था? मैरी मेलन was carrier of typhoid, ठीक है, who spread the diseases through food she prepared। जो मैरी मेलन थी उन्होंने जो फूड प्रिपेयर किया था, ठीक है, उसके थ्रू ये डिजीज स्प्रेड हुई थी। hence the name nicknamed was टाइफॉइड मैरी, उनका नाम ही टाइफॉइड मैरी रख दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट डिजीज इज निमोनिया, okay. The next disease is pneumonia. This is also second bacterial diseases we are going to discuss over here. Pneumonia. The pathogen name is Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenza। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन द नीट पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है कि पैथोजन बताओ निमोनिया क्या, एंड दे बोथ कम्स इन द ऑप्शंस। सो एक साथ अगर ऑप्शन में है तो आप दोनों टिक कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, इसे याद करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका निमोनिया है, निमोनिया का पैथोजन होगा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? ये एक्चुअली ना ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैलते हैं, लाइक जो ड्रॉपलेट्स होती हैं उसके थ्रू ये फैल जाते हैं। इवन बाय शेयरिंग ग्लासेस एंड यूटेंसिल्स विद द इन्फेक्टेड पर्सन। जो इन्फेक्टेड पर्सन होगा उसका अगर आपने ग्लास या फिर कोई भी बर्तन, यूटेंसिल्स या फिर ग्लासेस यूज़ किए ना, तो उससे भी ये शेयर होता है विद द इन्फेक्टेड पर्सन, ओके। सिम्टम्स इसके क्या क्या हैं? इन्फेक्टेड पर्सन इन्फेक्शन जो होता है वो अकर होता है इन एल्वेलाई एज अ रिजल्ट। एल्वेलाई में सबसे पहले इन्फेक्शन होगा, फिर एज अ रिजल्ट एल्वेलाई गेट फिल्ड विद फ्लूड। एल्वेलाई में ना फ्लूड फिल्ड हो जाएगा एंड लीडिंग टू सेवियर प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होने लगेगी, क्योंकि एल्वेलाई में फ्लूड एक होगा वो फिल हो जाएगा, ठीक है। ये इन्फेक्शन जब होता है ना तो ये प्रोसेस होती है उसमें कि सबसे पहले वो एल्वेलाई में इन्फेक्शन होगा, फिर एज अ रिजल्ट एल्वेलाई गेट फिल्ड विद फ्लूइड एंड लीडिंग टू सिवियर प्रॉब्लम्स इन रेस्पिरेशन। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम इज फीवर, चिल्स, कफ एंड हेडेक, ठीक है। और सिवियर केसेस में तो लिप्स एंड फिंगर्स में टर्न टू ग्रे टू ब्लूइश इन कलर। अगर सिवियर केसेस है, मतलब बहुत ज़्यादा सिवियर कंडीशन है, सीरियस कंडीशन है, तो उसमें लिप्स एंड फिंगर्स में टर्न टू
gray to bluish color. Okay, so here guys, I'm going to end my lecture, and from tomorrow or in other video we will discuss about tuberculosis and many other uh, bacterial diseases. Okay, thanks for watching the video. If you like the video, please like, share and subscribe my channel. Thank you so much. Please guys, keep supporting me. Thank you.